Hello students, how are you? I hope all of you are doing good. Guys, my name is Lohit Jindal and I welcome you all in our INMO flashback series. So guys, in this series हम कर क्या रहे हैं? We are solving all the previous year INMO questions starting from 2001. I guess sorry, year 2000 हमने वहाँ से start किया था. So we have been solving one question of INMO previous year question, one question at a time in each video. Okay, there's a reason for that. So we are not doing that all together इकट्ठे नहीं कर रहे हैं इसलिए क्वेश्चन so that you get some time to absorb the question, right, to understand the question easily. All right, so it is better this way कि आप regular intervals पे आप एक एक क्वेश्चन करके इनमो के क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हो. That will be much more beneficial rather than कि आप just बैठ गए इकट्ठे कुछ क्वेश्चन लेके, क्योंकि काफ़ी मुश्किल होते हैं तो नहीं हो पाता है तो it becomes a bit frustrating or something, right? So वो नहीं हो पाता होता है इस तरह से अगर आप सॉल्व करते हो, right? So guys, before starting, let me introduce myself. My name is Lohit Jindal. I had done my BTech from IIT Bombay. And since graduating, I have been teaching mathematics for various competitions like IIT JEE, JEE Mains, Advanced both, right? And then KVPY, Pre-RMO, RMO, INMO, etc. Right? So guys, आज का जो हमारा question है, that is more of in the lines of combinatorics के सेंस में आप कह सकते हो, थोड़ा सीक्वेंस सीरीज का भी उसके अंदर यूज है. So let's try to read the question and try to first understand the question. उसका meaning क्या है? Because it's a very interesting question, right? All right. So let's go to this question, guys. So here it is. So what does this question say, guys? Suppose suppose the n square numbers from 1, 2, 3 up to n square are arranged to form a n by n array consisting of n rows in n columns, such that the numbers in each row from left to right and each column from top to bottom are in increasing order. Okay, so guys, let me get the diagram. Okay, मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, so थोड़ा छोटा कर देते हैं, so which will make it easier to for you guys to understand. ठीक है कि क्या बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, right? All right guys, so अब क्या बोला जा रहा है गाइस, इस तरह से आपके पास ग्रिड है, आपको इन ग्रिड के अंदर नंबर फिल करने हैं फ्रॉम 1 टू n स्क्वायर. इट्स n बाय n का ग्रिड है, सो ऑब्वियसली देयर आर n स्क्वायर बॉक्सेस, है ना, n स्क्वायर एम्प्टी बॉक्सेस हैं, आपको उनके अंदर नंबर्स लिखने हैं, राइट? एंड यू हैव टू राइट इट इन सच अ वे सो दैट हॉरिजॉन्टली अगर आप जाते हो लेफ्ट टू राइट, देन ऑल द नंबर्स शुड बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, एंड सिमिलरली गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम आल्सो द नंबर शुड बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है, ऐसे फॉर्मेट में आपने फिल कर दिया है. नाउ व्हाट इट इज सेइंग इज, लेट्स से denote by AJK the number in jth row and kth column. ठीक है, कौन सा नंबर होगा किसी jth row में और kth column के अंदर. let's say this is the jth row and this be the kth column, right? तो इस तरह से हम इसका मतलब इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, राइट? इसके अंदर जो नंबर फिल किया होगा उसकी बात कर रहे होंगे, राइट? ओके, सपोज BJ is the maximum possible number of entries that can occur as AJJ. AJJ का मतलब क्या है? That row number and column number has to be equal. So let me change this now. So K हटा देते हैं. So this is J. Okay. So this is also J. So we are talking about this particular element, right? इस बॉक्स की बात कर रहे हैं when we are talking about AJJ, right? Same row and same column. Okay, we are talking about this particular row. Box. ठीक है, where j is going from 1 to n, of course we have to prove this particular inequality. देखो बच्चों, bj क्या डिफाइंड है? bj is the maximum possible number of entries that can occur as ajj, right? So very interesting guys, on example भी like if it is n equal to 3 है, 3 by 3 का ग्रिड है अगर, the only numbers which can occur as a22 are 4, 5 and 6. So b2 is going to be 3. ठीक है, ये आपको बताया हुआ है. सो गाइज लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये करेंगे कैसे, राइट? सो गाइज बहुत इंटरेस्टिंग बात है. आप एक बात सोचो, जो अगर मैं जो ऊपर का अपर लेफ्ट कॉर्नर में जो j बाय j का सब मैट्रिक्स बन रहा है, ओके, लेट मी शो यू. जो ये वाला सब मैट्रिक्स बन रहा है यहाँ पे इस तरह से गाइज, ओके, मैंने मार्क कर दिया आपको, वो रेड कलर से बना दिया. देखो मैंने आउटलाइन इज मेड अप इन रेड कलर. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सब ग्रिड. ठीक है,
ठीक है। सो गाइज इसके अकॉर्डिंग जिस सब ग्रिड की हम बात कर रहे हैं, राइट, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस, क्या मैं ये बोल सकता हूं इस अपर सब ग्रिड के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, जे स्क्वायर आएंगे, और ये वाला जो क्रॉस मैंने मारा हुआ है, ये वाला जो एलिमेंट है वो ऊपर वाले सभी एलिमेंट से बड़ा है, राइट, इट्स ग्रेटर देन ऑल ऑफ देम, है ना। तो ऊपर कितने मैक्सिमम आ जाएंगे, सो कैन यू से दैट ए जे जे, ठीक है, उसको एक्सक्लूड कर देते हैं एक बार, शुड बी ग्रेटर देन जे स्क्वायर माइनस वन, बोल सकते हैं ऐसा। जो ए जे एलिमेंट है यहाँ पे, वो ऊपर वाले इस पूरे ग्रिड में कितने एलिमेंट्स है टोटल, जे स्क्वायर है, उसको अगर हटा दें खुद को तो देर आर जे स्क्वायर माइनस वन एलिमेंट्स, राइट। सो तो जो ए जे है दैट हैज टू बी ग्रेटर देन दैट जे स्क्वायर माइनस वन, उससे तो बड़ा ही होना चाहिए ना वो एलिमेंट, है ना। सो व्हाट डज दिस मीन, दैट एक्चुअली ए जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू जे स्क्वायर, ये बोल सकते हैं। दिस इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस। तो उस एलिमेंट को जो पुट कर सकते हैं उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जे स्क्वायर, राइट, सिंस इट्स इन द जेथ रो एंड जेथ कॉलम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दोबारा बोल देता हूँ। जो ऊपर सब मैट्रिक्स बन रहा है जे बाय जे का, ठीक है, जो ये स्क्वायर मैंने रेड कलर का शो किया आपको जे बाय जे का साइज का, तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, जे स्क्वायर, राइट। हमको छोटे से छोटे लिखने हैं ना वहां पे, आप ऐसे सोचो, तो जे स्क्वायर एलिमेंट्स आएंगे उसके अंदर। अगर उसमें से उस एलिमेंट को नहीं मान रहा हूं, एक्सक्लूडिंग द एलिमेंट इटसेल्फ, देन दे आर जे स्क्वायर माइनस वन एलिमेंट्स, और उनसे तो बड़ा होना चाहिए ना कम से कम। इट हैज टू बी पॉसिबल वैल्यूज बतानी है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज, तो कम से कम उन सब के अंदर जे स्क्वायर माइनस वन एलिमेंट्स तो आएंगे ही आएंगे ना। तो इसका मतलब जो ए जे है उसकी मिनिमम वैल्यू हो क्या सकती है, दैट इज जे स्क्वायर, राइट। उसकी मिनिमम वैल्यू विच इज पॉसिबल इज जे स्क्वायर, राइट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। नाउ कमिंग फर्दर गाइज, अब सिमिलर वे में अगर आप बात करते हो, if I draw another square like this, consider another sub matrix। अब नीचे वाला सब मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं हम यहाँ पे, राइट, okay, let me mark it। तो गाइज ये वाला सब मैट्रिक्स जो अभी हमने ग्रीन कलर में कर दिया है, ठीक है, यू कैन सी दिस सब मैट्रिक्स विद ग्रीन कलर्ड आउटलाइन, राइट। तो गाइज इसके अंदर सिमिलर वे में ये सबसे छोटा एलिमेंट होना चाहिए उसके अकॉर्डिंगली, राइट, बिकॉज फ्रॉम टॉप अपर लेफ्ट कॉर्नर टू लोअर राइट कॉर्नर नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं ना, हॉरिजॉन्टली भी, वर्टिकल डाउनवर्ड्स भी। सो हाउ मेनी एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे इसके अंदर, मैक्सिमम कितने होंगे, ठीक है। सारे के बड़े एलिमेंट्स अगर उधर डाल देते हैं हम, तो जो ए जे होगा, आप ये सोचो इसके अंदर व्हाट इज द साइज ऑफ दिस मैट्रिक्स, एन माइनस दिस इज जे माइनस वन, राइट, क्योंकि ये वाला जेथ रो है, दिस वन इज द जेथ रो, राइट। तो इसके ऊपर कितने चले गए, जे माइनस वन। सो इस रो, इसका साइज क्या है, जो ग्रीन वाला बॉक्स मैंने बनाया, ग्रीन सब मैट्रिक्स जो बनाया मैंने, उसका साइज क्या है, एन माइनस जे प्लस वन, राइट। सो हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली द साइज इज एन माइनस जे प्लस वन, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। सो गाइज एन माइनस जे प्लस वन का मैट्रिक्स है, उसमें से उसको खुद को नहीं मानते हैं, राइट। सो कैन आई से दैट ए जे इज लेसर देन, राइट, लेसर देन एन माइनस जे प्लस वन का होल स्क्वायर, उससे छोटा होना चाहिए ना, ठीक है। अगर उस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, n माइनस जे प्लस वन, राइट, उसके मल्टीप्लाई हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो हो गए, उससे तो छोटा होना चाहिए ए जे, राइट, सॉरी नॉट उससे छोटा, इट शुड बी लेसर देन इक्वल टू नंबर ऑफ दैट एलिमेंट्स, क्योंकि उसको एक्सक्लूड भी कर रहे हैं तो प्लस वन भी कर देंगे, राइट। इतने एलिमेंट्स हैं, n माइनस जे प्लस वन का होल स्क्वायर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, क्योंकि उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं तो माइनस वन करना था हमें, ओके सॉरी, माइनस वन आएगा यहाँ पे, दिस इज माइनस वन, राइट। तो उसमें से माइनस वन हम कर देंगे, तो दैट मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए जे, मैक्सिमम वैल्यू वो हो सकती है ना। अगर सारे एलिमेंट्स देख लिए कि कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, एन माइनस जे प्लस वन का होल स्क्वायर, राइट। तो उस पर्टिकुलर सेट के अंदर जो वहां पे जो वैल्यू आएगी, उसमें से एक वैल्यू एड माइनस वन करके आएगी, राइट, ओके। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। ए जे की जो वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, दैट विल बी एन माइनस जे प्लस वन होल स्क्वायर, ओके, प्लस वन, ओके एक सेकेंड गाइस, ये गलत क्यों लिख रहे हैं एक्चुअली, ओके, आपको एन स्क्वायर में से माइनस भी तो करना चाहिए ना इसको, आई एम सॉरी गाइस, आप देखो इसको, ओके, जस्ट अ सेकेंड,
ओके सो गाइस देखो मैं दोबारा बता देता हूँ, दीज आर द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट। All right, just a second guys, there is some malfunctioning, okay, just a second. All right, मैं दोबारा लिख देता हूँ गाइस, okay, just a second guys. All right, so guys again coming back, I'm sorry for the delay, there was some problem with the interface. Okay, so guys this is the number of values that can come in this green size सब मैट्रिक्स, राइट। ये बात समझ में आ गई। तो बाकी बाहर उसके कितने एलिमेंट्स बचे वो समझते हैं हम। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स वर n स्क्वायर माइनस n माइनस j प्लस 1 का स्क्वायर। दीज आर द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर लाइंग इन दिस एल शेप्ड प्लेस, राइट। दिस एल शेप्ड प्लेस जो आएंगे वो कितने हैं, n माइनस j प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, राइट। सो नाउ गाइज जो आपका यहाँ पे जो एलिमेंट आना चाहिए ये उसमें से जो वैल्यू है, राइट, तो उसमें से प्लस 1 करके आना चाहिए, है ना, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी। सो विच मीन्स ए जे जे इज लेसर देन इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n माइनस जे प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। तो बेसिकली उसके अपर साइड वाला जो एल शेप ऐसा कुछ बन रहा है, इन्वर्टेड एल, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, n स्क्वायर माइनस n माइनस जे प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो जो ए जे जे है वो उसका सबसे पहला एलिमेंट होएगा, इसलिए प्लस 1 करके हम उससे लेस देन इक्वल टू बोल रहे हैं, राइट। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ओके, आई विल से इट अगेन। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो इस स्क्वायर के अंदर आएंगे, लोअर बॉटम सब मैट्रिक्स के अंदर आएंगे, दैट इज n माइनस जे प्लस 1 का होल स्क्वायर। सिंस आई वांट टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट एलिमेंट जो इस x की प्लेस पे आ सकता है, राइट, जो ए जे जे पे आ सकता है। सो द रिमेनिंग एलिमेंट्स कितने इन्वर्टेड एल के अंदर, n स्क्वायर माइनस n माइनस जे प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो उनसे एक बड़ा करूंगा ना जस्ट, उसके बाद जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है उसमें सबसे छोटा होना चाहिए, इसलिए वो हम सिर्फ प्लस 1 करेंगे। सो नाउ गाइस ए जे जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है, द वैल्यूज ए जे जे कैन टेक इज फ्रॉम जे स्क्वायर टू, मैं लिख देता हूँ। सो द वैल्यूज ऑफ ए जे जे आर लाइंग इन अ सेट जे स्क्वायर प्लस 1 सो ऑन टिल n स्क्वायर माइनस n माइनस जे प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1। सो जे स्क्वायर से शुरू होके वो कहां तक जाएगा, n स्क्वायर माइनस n माइनस जे प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 तक। सो गाइज हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन दिस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, दैट इज बी जे। सो दैट इज n स्क्वायर माइनस n माइनस जे प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1, है ना, माइनस जे स्क्वायर प्लस 1। यही तो करते हो आप। अगर कोई पॉइंट से लेके लेट्स से 10 से 17 तक कितने एलिमेंट्स होंगे, कैसे काउंट करते हो आप, 17 माइनस 10 लास्ट एलिमेंट माइनस फर्स्ट एलिमेंट प्लस 1, क्योंकि वो फर्स्ट एलिमेंट को माइनस नहीं करना था, राइट। सो दैट इज द प्रोसेस। सो बीजे की वैल्यू आ गई आपके पास, दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ना, तो हमने काउंट कर लिया इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, जे स्क्वायर से लेके हम उस अमाउंट तक जा रहे हैं। सो गाइज इसको ओपन करते हैं, दिस विल गिव यू n स्क्वायर माइनस, इसको एक्सपैंड कर देते हैं, n स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2nj माइनस 2j plus 2n, right, then another plus 1 minus j square plus 1. So you can see some terms are cancelling, n square से cancel हो जाएगा, right, so minus 2j square तो इकट्ठा हो जाएगा, right. So this will give you the expression of bj equal to, okay, n वाले terms इकट्ठे कर लेते हैं, this is 2n, right, 2nj आ जाएगा, anywhere else, is there any n somewhere, right, okay, सही है यहाँ तक। so it is 2n plus 2, constant आ गया साथ में, 2n plus 2, right, minus 2j square, right, minus 2j square minus 2j, sorry, it's plus 2j, right, this negative is plus, so 2nj, okay, rather 2j के साथ में आप क्या कर सकते हो, the terms where you have 2nj minus 2j, so plus 2 common, plus 2j is common, then it's n plus 1,
राइट. आई होप सारी टर्म्स को हमने कंसिडर कर लिया. जे स्क्वायर, there was minus of 2j square that we have taken care of, plus 2 that is taken care of, right, plus minus 2n. Okay, this has to be minus 2n, right? Okay, so all right, 2n minus 2n, 2 minus 2n आना था, right? Minus 2j square plus 1. Okay, this 1 will get cancelled, right? 1 and 1 will get cancelled, so you're left with 1 only. Okay, so 2n plus minus 2n plus 1 are right? So minus 2j, okay, that we have taken care of. Minus 2j plus 2j times n plus 1 and minus 2j square. Okay, right? Okay, all right. Okay, so guys, अब क्या करेंगे इसके आगे, right? यहाँ तक तो I hope सबको clear हो गया. Now we have got the value of bj. All we have to do is do the summation of bj, है ना? b1, b2, b3 up to bn चाहिए हमें, तो वो करते हैं हम. Okay, so this is actually bj is lesser than equal to, right? So this expression should basically be lesser than equal to. ठीक है, वो maximum number लिख रहे हैं ना हम elements का. So guys, now we have to come here. So summation of bj, where j is going from 1 to n, will look like summation of, okay, summation of 2n plus 2 times j, मैं last term को पहले लिख रहा हूँ, right? Then minus 2j square plus 1 minus 2n, right? इसका summation करना है हमें from j equal to 1 to n. So basically summation of bj is lesser than equal to this summation, right? So let's see क्या आता है ये. So this is lesser than equal to 2n plus 2 is common, वो तो j पे dependent होना चाहिए, right? 2n plus 2 is common into summation of j means n by 2 into 2n plus 1, right? n into n plus n plus 1 by 2. Correct? This is what summation of j means. Minus 2 times summation of j square is n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. ठीक है, प्लस 1 माइनस 2n का समेशन हो रहा है टाइम्स n हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है वो क्वांटिटी, इनटू n हो जाएगा. सो नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन. थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं. ओके, व्हाट एक्सप्रेशन वी हैव टू प्रूव इज दिस थिंग, तो वो भी हमारे माइंड में होना चाहिए कि हमें प्रूव क्या करना है. इट्स n/3 फॉर्मेट. ओके, सो व्हाट वी कैन सी हियर इज गाइस, ये वाला 2 इस 2 को और 2 को कैंसिल कर देगा, एंड दिस 2 विल कैंसिल 6 फॉर 3. Now you can take the LCM to be 1/3 first of all. Okay, और क्या कॉमन लिख सकते हो आप, n भी कॉमन लिख सकते हो out of all the expressions. Let's see अब क्या बचेगा. So we'll get n plus 1 whole square, right, minus n plus 1 into 2n plus 1 plus 1 minus 2n. This is what is left inside. Okay, यहाँ पे 3 भी आएगा और यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, right, क्योंकि 3 का मल्टीपल नहीं था. So upon taking the n/3 common term, you will be getting this expression. अब इसको simplify कर लेते हैं. This is 3n square plus 3 plus 6n minus 2n square minus 3n and minus 1 plus 3 minus 6n, right? ये बन जाएगा. So let's see, कुछ cancel हो रहा है तो 6n and minus 6n is getting cancelled. So okay, that's it. बाकी सिंप्लीफाई कर देते हैं हम. सो दिस विल बी लेसर देन इक्वल टू n/3. ओके, लिटिल बिट लो ऑन स्पेस. ओके, मैं थोड़ा नीचे आ रहा हूँ. ओके, सो विल गेट लेस देन इक्वल टू n/3. सो 3n square minus 2n square is n square, then minus 3n only, minus 3n, and then 3 plus 3 6 minus 1 is plus 5. So that is the final expression that we will be getting. So summation of bj, where j goes from 1 to n, that is summation of b1 b2 up to bn, should be lesser than equal to this expression, which is n/3 times n square minus 3n plus 5. So let's check it with the expression asked in the question. Yes, n square minus 3n plus 5 वही आ रहा है, right?
सो गाइज आई नो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, सो आई विल जस्ट समराइज इट अगेन, ओके, आप लोगों के लिए. सो देखो गाइज क्या बोला जा रहा था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए, वो तो सबको क्वेश्चन तो आई होप सबको समझ में आ गया. सो वी ड्रॉ द ग्रिड, वी ड्रू द ग्रिड जैसे मैंने आपको शो किया. सो गाइज इफ वी कंसिडर द अपर मैट्रिक्स, तो उसके अंदर वो जो क्रॉस वाला एलिमेंट है, जो ए जे जे एलिमेंट है, दैट शुड बी द लार्जेस्ट, राइट. सो सिंस देयर आर जे स्क्वायर एलिमेंट्स इन दैट and except itself, excluding itself, there are j square minus 1 elements, it has to be greater than that. So the minimum value ajj can take is j square, right, this here that I told you, right. Now similarly coming to the lower matrix, उसका upper bound ढूंढने के लिए हम क्या कर रहे हैं, in the bigger matrix, not the bigger, basically upper lower right matrix, जो ये वाला green से कलर से मैंने जो मैट्रिक्स ड्रॉ किया है, lower right matrix, उसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, दैट इज n माइनस जे प्लस 1 होल स्क्वायर, कितने एलिमेंट्स हैं, राइट. सो बाकी जो बचा हुआ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो बाकी जो कितने एलिमेंट्स बच गए बाकी इंटरवल में, ठीक है, n माइनस एन स्क्वायर, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर n स्क्वायर माइनस n माइनस जे प्लस 1 का होल स्क्वायर, इतने एलिमेंट्स. या फिर आप ये भी बोल सकते हो, जो ये वाला ए जे जे एलिमेंट है, दैट शुड बी बेसिकली द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दैट सब मैट्रिक्स, राइट. तो सब मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट्स अगर आप वो हटा दोगे आप उसमें सब में से, तो बाकी बचे एलिमेंट्स कितने बचे, n स्क्वायर माइनस n माइनस जे प्लस 1 होल स्क्वायर. तो उससे एक ज्यादा होना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट है क्योंकि, है ना. ये तो हम एल शेप, इन्वर्टेड एल शेप के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उसकी बात कर रहे थे हम, n स्क्वायर माइनस n प्लस जे प्लस 1 होल स्क्वायर की. तो उससे एक बड़ा होना चाहिए कम से कम, और उससे छोटा होना चाहिए फिर वो, राइट. सो ए जे जे विल बी लेसर देन इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n माइनस जे प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1, राइट. ये आ जाएगा. नाउ वी रोट ऑलरेडी कि ए जे जे शुरू हो रहा है जे स्क्वायर से, जा रहा है यहाँ तक, राइट. सो इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम जे स्क्वायर एंड गोइंग टिल n स्क्वायर माइनस n माइनस जे प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 तक. सो देन वी फाउंड कि ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो कितने होंगे ये, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, बीजे एलिमेंट का अपर बाउंड कितना आ गया, इसका मतलब दिस आर मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ना. सो दैट इज द लास्ट टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म प्लस 1, वो किया हमने यहाँ पे. This is the last term minus the first term plus 1, right. This is how you count the number of elements. So उसको अगर आप simplify करते हो, you get this particular expression for bj, that bj is lesser than equal to 1 minus 2n minus 2j square plus 2j times n plus 1. Then all we had to do was do the summation of this particular expression. वही हमें find करना था, क्योंकि you did the summation and you wrote the formulas from sequences and series, you already know them, right. तो आपके पास solve होके जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है, रिक्वायर्ड इनइक्वालिटी है या अपर बाउंड है, वो आ जा रहा है, राइट. सो गाइज आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया. इट्स क्वाइट एन इंटरेस्टिंग वन. प्लीज ट्राई टू पॉज द वीडियो, अपने आप से सोचना, थोड़ा ध्यान से नंबर सोचना, ठीक है, तो बेटर समझ में आएगा. ओके, सो गाइज आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया. इट इज क्लियर टू एवरीवन. ओके, विल सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ द INMO 2002 exam paper. This was the 6th question of INMO 2002. So far we have completed INMO 2000, 2001 and 2002, right. So the next session we will be coming back with the next exam paper of INMO. Okay, all right guys, so we'll see you in the next video. Okay, till then, all the best and take care and keep practicing. Okay, bye bye guys, take care. So guys, we are launching our Maths Olympiad courses for this year 2022. So in which Abhay sir, Chetan sir and me myself, Lohit Jindal, will be taking these courses. So I'll tell you what are the features of this course guys. Okay, so first of all, this course will be started from the very basics. To accommodate that, we have kept 4 sessions a week. हम week में 4 session रखने वाले हैं, not 3 as we were previously doing it. तो 4 sessions रखेंगे जिसमें हम pretty much basics से pick करेंगे हर चीज़ को, ठीक है. It will give us that much time. Okay, so हम basic से करेंगे, that the sessions will be 4 times a week. Second thing, you will be getting good assignments, like level wise assignments going from under pre-RMO level to RMO level in that assignments itself, right. तो level wise assignment होगा तो आप उसको easily अपना level up करते जा सकते हो, धीरे धीरे your level will increase gradually in that, है ना. सीधा डायरेक्टली मुश्किल क्वेश्चन से आपको डील नहीं करना पड़ेगा. Then the third thing is there will be doubt solving groups on Telegram, ठीक है. तो आपके रेगुलरली डाउट्स टेलीग्राम पे डिस्कस कर सकते हो आप, विद इन 24 आवर्स आपके डाउट्स सॉल्व हो जाया करेंगे, राइट. एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज दैट देयर विल बी टेस्ट्स, रेगुलर टेस्ट्स विद एग्जैक्ट सेम लेवल, एग्जैक्ट सेम काइंड ऑफ लेवल, रादर थोड़ा बहुत हायर रखते हैं, बट pretty much the same level and pattern of pre-RMO, so that you get ample practice of writing or solving a pre-RMO paper before the actual exam.
right? So guys, if you are interested in these courses in studying and understanding maths, आप लोग buy कर सकते हो ये वाला course, right? So this is the pricing for the course, guys. 20,000 course. The pricing of the course is that 20,000, but since we are starting early, like अभी बहुत कम, अभी थोड़ा टाइम बाकी है, so we are offering steep discounts, 55% discount पे. The cost of this course is 9,000 rupees. You can get registered and get this course for 9,000 rupees, जिसके अंदर हम आपको पूरा एंड तक लेके जाएंगे, ठीक है? Till the maximum stage you can get to in Maths Olympiad. And you can apply this code LJPRO, LJPRO, ठीक है, to get an extra discount of additional 10% on this 9,000 rupees. 8,999 के ऊपर आपको further 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा. So the link is in the description box. आप रजिस्टर कर सकते हो बैच के लिए अभी से. So if you are guys interested in Maths Olympiad और पढ़ना चाहते हो पूरा शुरू से, so you guys, this course will be very very helpful to you. Okay, all right guys, thank you, bye bye.